Hello children, welcome again to your maths class. I am Poonam Bagga. We are studying chapter 6 triangles from class 10th maths. We started this chapter in our previous video and we learnt what is meant by similar figures. We also learnt the criteria for similarity of polygons and learnt to examine whether the given polygons are similar or not. Now as triangles are also polygons, we can apply the same criteria in case of triangles also. Let us see here. Two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio or proportion. Again, the same conditions are being applied in case of triangles as we learnt them in case of polygons. दो triangles similar होंगे अगर उनके corresponding angles equal हो और उनकी corresponding sides का ratio equal हो every time. Then we say the two triangles are similar. Now if we have two triangles whose corresponding angles are equal, we call them as equiangular triangles. If corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles. देखिए आप यहाँ दो triangles हैं जिनके corresponding angles equal हैं. These are 90 degrees, 50 degree, 50 degree, 40 degree, 40 degree. So these two triangles are equiangular triangles क्योंकि इनके corresponding angles equal हैं. Now what is said? The ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. What does this mean? अगर हमारे पास दो equiangular triangles हों, इसका मतलब यहाँ पर first condition satisfy हो रही है similarity कि the corresponding angles are equal. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर. तो ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या कह लीजिए वो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हों, ऐसे ट्राइंगल्स के केस में अपने आप ही इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो ऑटोमेटिकली ही सेम आएगा. द रेशो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम. इसका मतलब जिन ट्राइंगल्स में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उन ट्राइंगल्स में अपने आप ही ये सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल होगी. एंड माइंड इट, दिस इज द केस ओनली इन केस ऑफ ट्राइंगल्स. सिर्फ ट्राइंगल्स के केस में ही जैसे ही फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई वैसे ही साथ साथ सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी. It is not applicable in case of all other polygons. This is applicable in case of triangles only. So now as we see that the first condition is satisfied, अपने आप ही the second condition will be satisfied automatically. Getting it? Now to understand the concept of similarity of triangles much better, first we need to understand some results in the form of theorems. Let us have a look. We have this theorem, basic proportionality theorem. We will be understanding it first, which is also known as Thales theorem, named after the famous Greek mathematician Thales. उन्होंने ये theorem दी थी और इसीलिए इसे हम कहते हैं Thales theorem, and also we call it as basic proportionality theorem. इसको समझना ज़रूरी है. To understand the similarity of triangles, first we need to understand this theorem. What it states: if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Step by step, part by part पढ़ते हैं. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो ये triangle है हमारे पास. Let us name it as A, B, C. अब इसकी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है. Let us choose this side to be BC. तो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं in this way. Now if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. अब other two sides कौन सी हो गई? AB और AC. इनको ये line दो distinct points पर intersect कर रही है. You can see these two points 1 and 2. Let us name them as D and E. ये दो points हो गए D और E. इन पर ये AB और AC को intersect कर रही है. Then the other two sides are divided in the same ratio. अब आप देखेंगे ये जो other two sides हैं AB और AC, ये दो parts में divide हो गई है और इन parts का जो ratio है वो same होगा. तो अब आप देखिए इसके दो parts क्या हैं, AD और DB. इनका ratio क्या हो गया? AD upon DB. और यहाँ पर AC के दो parts हो गए AE और EC और इनका ratio हो गया AE upon EC. और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये दोनों रेशियोज इक्वल होंगे.
दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए जो बाकी दो साइड्स को दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों पार्ट्स का जो रेशो है वो इक्वल होगा। ठीक है, अब इसी को हमें प्रूव भी करना है, और प्रूव कैसे करेंगे? हियर वी विल बी इक्वेटिंग द एरियाज ऑफ सेम रीजन व्हेन वी फाइंड इट बाय डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पर ये ट्राइंगल ले लीजिए ADE, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे और दो डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट करेंगे और उनको इक्वेट करेंगे। अब एरिया क्या होता है एक ट्राइंगल का? इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसके लिए हमें इस ट्राइंगल का बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। बेस और हाइट कैसे मिलेगा बताइए? लेट अस टेक दिस साइड टू बी द बेस। अगर हम इसे बेस लेते हैं तो इसका जो ऑपोजिट वर्टेक्स है E, वहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कुछ इस तरह से, लेट इट बी EN। तो अब आपका ये तो बेस हो गया, जिस साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो साइड तो बेस कहलाती है, और जहाँ से हम ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं EN, इस EN को हम कहेंगे इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड, या कह लीजिए हाइट, या कह लीजिए दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ द एरिया विल बी हाफ, बेस क्या हो गया AD और हाइट क्या हो गई आपकी EN। देख रहे हैं आप? इसी तरह से हम एक और तरीके से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस बार हम बेस और हाइट डिफरेंट चूज़ करेंगे। हम ले लेते हैं ये साइड एज द बेस, AE को बेस लेते हैं। तो अब ऑल्टीट्यूड कैसे मिलेगा? इसके ऑपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, लेट इट बी M हियर। तो अब इसी का एरिया क्या हो गया? हाफ, बेस क्या हो गया AE और हाइट हो गई आपकी DN। ठीक है, तो अब हमने इसी सेम रीजन का एरिया दो तरह से निकाल लिया, और क्योंकि ये रीजन तो सेम है तो एरिया भी सेम ही होगा। आप देखिए ये रीजन सेम है ADE, तो इसलिए इसका जो एरिया है दोनों मेथड से दोनों इक्वल होंगे, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव फाउंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ADE। नाउ नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट दीज टू ट्राइंगल्स। जॉइन हियर CD, इसको जॉइन कर लीजिए, और इधर से BE को जॉइन कर लीजिए। तो अब हमें दो ट्राइंगल्स और मिल रहे हैं जिनका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। लेट दिस बी E। कौन से दो ट्राइंगल्स हैं? एक तो ये वाला एरिया BDE, ये फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। हाँ, ये ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए फिर से अगर हम इससे बेस लें ये वाली साइड, तो हमें हाइट चाहिए होगी। हाइट कहाँ से मिलेगी? ये तो बेस ले रहे हैं, और हाइट के लिए वापस यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये जो हमने EN लिया था। सो EN विल बी द हाइट फॉर दिस ट्राइंगल। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है तो उसकी हाइट हमें बाहर की तरफ मिलती है, ट्राइंगल से बाहर। दिस इज़ द हाइट एंड दिस इज़ द बेस। तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? हाफ, बेस हो गया आपका BD इंटू हाइट आपकी क्या हो गई EN। समझ रहे हैं आप? और इसी तरह से फिर हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की, ये वाला ट्राइंगल जिसे हम कहेंगे CDE। इसका ट्राइंगल का एरिया कैसे मिलेगा? इसके लिए फिर से हमें हाइट चाहिए होगी, और हाइट क्या होगी इस बार? ये DM। ये तो बेस हो गया CE, और ये इसकी हाइट हो गई, ये बेस हो गया। तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको मिलेगा हाफ इंटू बेस इज CE और हाइट हो गई आपकी DM। इस तरह से ये एरिया और ये एरिया भी निकालेंगे, और आप देखेंगे कि ये दोनों एरियाज भी इक्वल होंगे, बिकॉज वी हैव लर्नड इन क्लास 9th that the areas of triangles that lie on the same base and between the same parallels are equal। सेम बेस है, ये DE पर हैं ये दोनों ही ट्राइंगल्स, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लोकेटेड हैं, इसलिए इनके एरिया इक्वल होंगे। इनको भी इक्वेट करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे इस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के रिजल्ट पर। नाउ लेट अस प्रूव दिस थ्योरम। हियर वी टेक first of all what is given in triangle ABC, a line parallel to side BC intersects AB and AC at points D and E respectively। ये हमें दिया है कि ABC में एक लाइन AB और AC को D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है। Now we have to prove AD upon DB is equal to AE upon EC। ये हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे?
पहले तो हम ज्वाइन करेंगे BE और CD को, लिख लेते हैं यहाँ पर ज्वाइन BE एंड CD। इसके बाद हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, D से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर इधर AC पर, ड्रॉ, इसको नाम दे दीजिए M, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, गेटिंग इट, एंड देन ड्रॉ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम E, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, नाम दे दीजिए यहाँ पर N एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, गेटिंग इट। हमने यहाँ पर AC के परपेंडिकुलर ये ड्रॉप करा DM और AB के परपेंडिकुलर हमने EN ड्रॉ किया है, गेटिंग इट। नाउ वी विल बी प्रूविंग द रिजल्ट। First we will find the area of triangle ADE by two different methods. Let us write here now the proof. This is the figure. First of all, here we find area of triangle ADE. We know that area of a triangle, it is given by half base into height. This we all know, half base into height. I hope it is clear, the formula. Next we write here area of triangle ADE. अभी हम इस पर फोकस करते हैं, ADE। अगर हम बेस लेते हैं इसको AD को और इसको ले हम हाइट, तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए, इट इज इक्वल टू हाफ, बेस ले रहे हैं AD और हाइट ले रहे हैं EN, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वन। वी ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE नाउ। लेट मी रिमूव दिस पार्ट। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। अगेन दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, क्या हो गया, ये साइड BD, इंटू हाइट, द हाइट विल बी सेम, दिस वन EN, यही हाइट रहेगी, इस ट्राइंगल की हाइट यही तो है, EN, दिस इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। ये दो एरियाज फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट अगेन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय डिफरेंट मेथड। लेट मी इरेज दिस। अगेन वी विल फाइंड दिस सेम एरिया ADE, but this time we will take this one as the height and this one as the base. Again, area of triangle ADE. This is meant as area of triangle ADE. This will be half. You can see this is the base AE and this is the perpendicular DM. ठीक है। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस टाइम वी विल टेक CDE, इस ट्राइंगल को लेंगे CDE, हाफ, बेस देखिए क्या हो जाएगी, ये वाली साइड CE, ये इसका बेस हो गया, और हाइट यही हाइट हो जाएगी इस ट्राइंगल की भी, DM into DM. So we have written all the four areas. Now we can remove दिस। चारों एरियाज आ गए हैं। अब हम इनका रेशो लेते हैं एक एक करके, इन दोनों का रेशो लेंगे और इन दोनों का रेशो लेंगे, ठीक है। वी राइट हियर टेकिंग देयर रेशोज, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। देखिए कैसे लेंगे, दिस इज हाफ AD इंटू EN, AD इंटू EN एंड अपॉन दिस इज हाफ BD इंटू EN, ठीक है, गेटिंग इट। नाउ वी कैन कैंसिल दिस EN and EN, cancel this half and half, you get it as AD
upon BD or DB, both are same. So we get this ratio as AD upon DB. देखिए एक पार्ट आ गया है हमें, रेशियो का मिल गया है हमें. Now next we will be taking this ratio. For this let me make some space again. Also area of triangle ADE upon area of triangle CDE. This is equal to half into, take this one, AE into DM upon half into, here we have CE into DM. This will be cancelled, DM and DM, half and half, we will be left with AE upon EC. तो जब आप यहाँ पर रेशो लें तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्हीं दो ट्राइंगल्स का रेशो लेना है जिनकी हाइट सेम हो. देखिए DM DM इनकी हाइट सेम है, इन्हीं का रेशो लिया है. इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स के केस में हाइट सेम है, EN तो इन्हीं का हमने रेशो लिया है और EN से EN कैंसिल हो गया, वी गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो हम यहाँ पर उन्हीं ट्राइंगल्स का रेशो ले रहे हैं. देखिए ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, एक बार तो इन दोनों का रेशो लिया और दूसरी बार हमने रेशो लिया इसी ट्राइंगल का और यहाँ से CDE, ये दोनों ट्राइंगल्स का. गेटिंग इट? तो इस तरह से ध्यान रखना है. नाउ व्हाट वी सी दैट सिंस ADE इज़ द सेम रीजन, तो ये दोनों एरियाज़ तो इक्वल ही हैं. यहाँ जो हमने लिए हैं ये दो एरियाज़, न्यूमरेटर तो दोनों के इक्वल हैं, ADE और ADE का एरिया है. तो दोनों केस में, दोनों रेशियोज़ में आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर्स तो इक्वल हैं. क्या डिनोमिनेटर्स भी इक्वल हैं? Yes, they are also equal. How? We write it here. We take the next page. Area of triangle BDE is equal to area of triangle CDE. Here. Why are they equal? Since areas of triangles lying on the same base and between same parallels are equal. आप देखेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ही बेस पर दो ट्राइंगल्स बनाए जाएं, मान लीजिए ये और एक और ट्राइंगल ले लीजिए, इनका एरिया सेम होगा. देखिए ये पैरेलल लाइन सेम है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, और इसमें भी ये वाला बेस सेम है दोनों ट्राइंगल्स के लिए. तो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस पर अगर दो ट्राइंगल्स बनते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है. इसी तरह से आप और ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं. एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, इसका भी एरिया इक्वल होगा. एक और ड्रॉ कर लीजिए, इन सब ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा जिनका तो बेस सेम हो और सेम ही पैरेलल लाइंस के बीच में बने. तो इस केस में भी आप देखेंगे यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे कि ये ट्राइंगल BDE और इधर से ये CDE, ये दोनों ट्राइंगल्स एक ही बेस पे बन रहे हैं. कौन सा बेस है वो? ये DE पर ही दोनों बन रहे हैं ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल भी और ये ट्राइंगल भी, और सेम ही पैरेलल लाइंस हैं DE और BC. ये पैरेलल दी हुई हैं क्वेश्चन में, हमने ड्रॉ ही पैरेलल की है, तो अपने आप ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम ही बेस पर दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो इनका एरिया इक्वल होगा. और यही बात हमने यहाँ पर कही है कि इनका एरिया इक्वल होगा. अब एरिया इक्वल होने से आप देखिए यहाँ पर इस केस में जब हमने ये रेशियोज़ फाइंड आउट किए थे तो क्या देखा था कि न्यूमरेटर्स तो इक्वल है ही, ये दोनों न्यूमरेटर्स तो सेम रीजन है, ADE का एरिया है, इक्वल है. अब साथ ही साथ ये भी तो इक्वल आ गए, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं BDE का एरिया और ट्राइंगल CDE एरिया, ये दोनों भी इक्वल आ गए. तो ये दोनों रेशोज़ क्या आ रहे हैं फिर? इक्वल आ रहे हैं. इनको हम नंबर दे देते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हम देते हैं 3. तो फ्रॉम 1, 2 and 3 वी कैन से कि since the LHS parts are equal, we can say area of triangle ADE upon area of triangle BDE equal to area of triangle ADE upon
area of triangle CDE. This implies that AD upon DB, देखिए ये जो रेशो आया था ये आया था AD upon DB और ये आया था AE upon EC. तो AD upon DB is equal to AE upon EC और यही है वो रिजल्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच वी वर सपोज्ड टू प्रूव. गेटिंग इट? तो यहाँ हमने क्या किया, हमने ये फिगर देखिए एक बार फिर से. पहले इस टॉप ट्रायंगल का एरिया दो अलग अलग तरीके से निकाला. देखिए ट्रायंगल ADE का एरिया दो अलग अलग तरीके से निकाला, यहाँ से और यहाँ से. और इसी तरह से ये बॉटम ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट किया यूजिंग द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, कंस्ट्रक्शंस के बाद. और फिर हमने देखा कि इनका रेशो लेने पर हमें ये मिल रहा है रेशो. और जब आप देखेंगे ये न्यूमरेटर्स इक्वल हैं, फिर आप देख रहे हैं कि ये डिनोमिनेटर्स में भी जो एरियाज़ हैं इक्वल है, क्योंकि दे आर एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स लाइंग ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. सो ये इक्वल हो गए, इससे हमें ये दोनों रेशोज इक्वल मिल गए और ये रिजल्ट हमें मिल गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का. गेटिंग इट? Now we also have a few more results that follow from the basic proportionality theorem and we call them as the corollary of the basic proportionality theorem or the Thales theorem. It says that if in a triangle ABC a line DE parallel to BC intersects AB in D and AC in E, then AD upon AB is equal to AE upon AC and also DB upon AB is equal to EC upon AC. Now we see the full length AB and AC in these ratios. If we compare these ratios with the original form of the basic proportionality theorem, we see that here as DE is parallel to BC, then by basic proportionality theorem, we get the ratios AD upon DB equal to AE upon EC. और अब हम देख रहे हैं ये full length है denominator में दोनों ही केस में. Now if we have been given the full length in any of the question, then we will be using these ratios, or if we have been asked these full lengths in any of the question, then we can again use these ratios. These are again results that follow from the basic proportionality theorem. Now we will be proving this first part. हमारे पास BPT से ये relationship तो है ही, ये दोनों ratios equal हैं. Now we want to keep this AD and AE there itself. AD और AE हमें expression में चाहिए, तो इन्हें हम पहले डिनोमिनेटर में रखेंगे. जिसे भी हम डिनोमिनेटर में लेंगे वो हमें वापस उस एक्सप्रेशन में मिलेगा. आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस वी विल बी गेटिंग देम अगेन बैक. तो AD और AE हमें वापस चाहिए, तो इन्हें हम पहले डिनोमिनेटर में ले लेते हैं बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल. DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE. यू कैन राइट हियर टेकिंग रेसिप्रोकल. Now what to do? To get this full length, we will be adding 1 to both the sides. पूरी length चाहिए, इसके लिए हम दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे. How? Just have a look. This will give you DB upon AD plus 1 equal to EC upon AE plus 1. This will be now DB plus AD. यहाँ ये AD 1 से multiply हो जाएगा. Then we have upon AD again DB plus AD upon AD. AD को 1 से multiply किया. Then we have DB plus AD in the numerator और denominator में AD है ही. इस तरफ आप ये मिलेगा EC, this is C plus AE upon AE. Getting it? Now what is DB plus AD? Just go through it. DB plus AD. Let me change here the color. You can see DB plus AD. ये तो full length हो गई AB. And similarly here we have EC plus AE. ये भी हो गई full length AC. So in place of DB plus AD we will write AB. Here as we write DB plus AD, it is AB upon AD, and this is equal to again EC plus AE is AC upon AE. Now again taking the reciprocal, we can write here AD upon AB equal to AE upon AC. This is also example 1 from your book. Here we have taken reciprocal once again. So in this way we have got this result. Getting it?
तो जब भी हमें फुल लेंथ चाहिए हो तो हम +1 कर लेंगे दोनों साइड्स, और जो हमें एक्सप्रेशन चाहिए, देखिए हमें एक्सप्रेशन चाहिए था AD और AE यहाँ न्यूमरेटर में, तो पहले हमने रेसिप्रोकल लिया, इनको डिनोमिनेटर में ले लिया, देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल लेने से, और फिर जब हमने +1 किया तो हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो इजीली मिल गया. गेटिंग इट? नेक्स्ट वी टेक द सेकेंड पार्ट एंड वी विल बी प्रूविंग इट ऑल्सो. हियर वी हैव DB एंड EC इन द रिजल्ट, और DB और EC पहले ही डिनोमिनेटर में है. अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करें, अगेन वी राइट हियर by basic proportionality theorem we have in this case AD upon DB equal to AE upon EC. अब क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में DB और EC चाहिए और वो पहले से ही डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ हम रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, और फिर अब हमें फुल लेंथ चाहिए AB और AC इन एक्सप्रेशंस में, तो हम यहाँ पर फिर से 1 को ऐड करेंगे. इफ़ वी ऐड 1 वी विल गेट हियर AD upon DB plus 1 equal to AE upon EC plus 1. Now this will give you AD plus DB upon DB equal to AE plus EC upon EC. ये आप समझ ही रहे होंगे, DB को 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी AD plus DB upon DB, और इसी तरह से EC को 1 से मल्टीप्लाई करके हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है. अगेन AD plus DB, you can see AD plus DB, it is AB itself, and AE plus EC, AE plus EC, this is AC, so we can easily now write here AB upon DB equal to AC upon EC, and now we can take the reciprocal to get the desired result. So here we can write further by taking the reciprocal DB upon AB equal to EC upon AC, again taking reciprocal. तो अब यहाँ पर आपके पास दो रिजल्ट्स और आ गए जहाँ पर हम कंप्लीट लेंथ को भी कंसिडर कर रहे हैं. नाउ इफ़ यू हैव बीन गिवन एनी क्वेश्चन, सपोज वी हैव बीन गिवन अ ट्रायंगल एंड देन वी हैव टू, let me first draw a triangle and then let me draw a line segment here in the center. Suppose we have this one as DE, and now we have to apply the basic proportionality theorem. Then we get the following results. Here DE is parallel to BC. पैरेलल साइड्स के लिए हम ये एरो से इंडिकेट करते हैं कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं. अब BPT से आपको क्या क्या रिजल्ट मिल रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार. Here we will have AD upon DB equal to AE upon AEC. ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट. इसी से सेकेंड रिजल्ट क्या मिल रहा है जब हम कंप्लीट लेंथ कंसिडर करें? वी विल गेट AD अपॉन AB. हम कंप्लीट लेंथ भी ले सकते हैं, इसी तरह से AE अपॉन AC. और थर्ड रिजल्ट हमें क्या दिख रहा है यहाँ से? DB अपॉन AB. इस बार हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, DB अपॉन AB. पहले हमने ये ऊपर वाला पार्ट लिया था AD अपॉन AB, फिर AE अपॉन AC लिया था. अब हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं DB अपॉन AB इक्वल टू, फ्रॉम हियर वी विल हैव EC अपॉन AC. ये तीन रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. हमने सभी को प्रूव कर लिया है. यू कैन ऑल्सो टेक देम इन दिस वे बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल. आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं. यू कैन टेक DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE. आप इसी थ्योरम को इस तरह से भी अप्लाई करेंगे तब भी सही है. हियर ऑल्सो यू कैन टेक द रेसिप्रोकल AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE. इस तरह से भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम रेसिप्रोकल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं दिस रिजल्ट AB अपॉन DB इक्वल टू AC अपॉन EC. So I hope all these results are very much clear to you. Once again you can go through by rewinding the video, just go through all this once again and then you will be very much clear. I hope now you can easily apply the basic proportionality theorem. Let us take a few cases. Here we have, now try to apply the basic proportionality theorem here in these two cases. यहाँ first case में आप देख रहे हैं DF parallel है AC के.
तो अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और अब इनके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है देखिए आप, वो B है, तो B से हम जो रेशो के पार्ट्स हैं वो लेना शुरू करेंगे। यहाँ से देखिए BD अपॉन DA, तो फर्स्ट हमें मिल रहा है BD अपॉन DA, ये रेशो हो गया। दिस इज इक्वल टू देखिए BF अपॉन FC। गेटिंग इट? ये फर्स्ट रिजल्ट जो हम यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कंप्लीट लेंथ के टर्म्स में लेना चाहें रेशो, तो आप लिख सकते हैं BD अपॉन दिस कंप्लीट लेंथ BA। वी कैन राइट हियर BD अपॉन BA and then we can write here BF upon this full length BC. Getting it? आप चाहें तो दोनों पार्ट्स का ही रेशो लें इस तरह से, या फिर आप एक पार्ट का कंप्लीट लेंथ से भी रेशो ले सकते हैं। वी कैन टेक द थर्ड रिजल्ट ऑल्सो। इस केस में आप कौन सा पार्ट लेंगे, एक बार इसको इरेज करके फिर समझते हैं हम। इस केस में हम पार्ट लेंगे ये AD और फिर ये कंप्लीट लेंथ, तो यहाँ से आ जाएगा AD अपॉन AB, और यहाँ पर भी हम ये वाली लेंथ ले सकते हैं FC अपॉन दिस कंप्लीट लेंथ BC। इस तरह से आप रेशो ले सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें रेसिप्रोकल फॉर्म में ले सकते हैं। यू कैन टेक एज AD अपॉन DB एंड FC अपॉन FB। तो आप किसी तरह से भी ले सकते हैं। जस्ट रिमेंबर द वर्टेक्स दैट वी विल बी चूजिंग इज दिस B, just opposite to the parallel sides here given. Getting it? Similarly you can apply here in this case. यहाँ हमें दी है PQ और LN parallel. Here PQ is parallel to LN. Just mark one arrow to show the parallel sides. Now again you can apply the basic proportionality theorem. अब बताइए कौन से vertex से start करेंगे? Yes, just vertex opposite to these parallel sides. This is M, तो आप ले सकते हैं यहाँ से MP अपॉन PL। फर्स्ट रिजल्ट अगर आप चाहें MP अपॉन PL, और यहाँ पर देखिए MQ अपॉन QN। आई होप यू आर गेटिंग इट वेरी वेल। इसी तरह से अगर हमारा क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें फुल लेंथ की बात हो रही हो, तो तब आप कैसे रेशो लेंगे, MP, यहाँ से MP ले लिया हमने ये पार्ट अपॉन दिस फुल लेंथ ML, और इसी तरह से MQ अपॉन दिस फुल लेंथ MN। और इसी तरह से अगर आप एक और रेशो लेना चाहें फुल लेंथ को लेते हुए, और इस बार अगर आप ये वाले पार्ट्स लेना चाहें NQ और यहाँ से LP, तो कैसे लेंगे रेशो इन टर्म्स ऑफ द फुल लेंथ। आप यहाँ लिख सकते हैं थर्ड केस जो बनेगा, यू कैन गेट NQ अपॉन दिस फुल लेंथ NM equal to, from here you can take LP upon this full length LM. आप ये कोई भी रेशो ले सकते हैं, इनका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। All you will be choosing according to the question given and asked. Getting it? Now we can just have a look at the basic proportionality theorem and then we can go to the converse of the basic proportionality theorem. Let us go and see what its converse says. Converse of basic proportionality theorem. The statement is, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. अगर हमारे पास एक triangle है, suppose we have this triangle, और इसमें एक line ऐसी है जो इसको इस तरह से divide करे, we name them A, B, C, और ये लाइन है DE पॉइंट्स पर डिवाइड कर रही है साइड्स AB और AC को। इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, हमें रेशो पहले से ही इक्वल दिया है, ये दिया है कि AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC। ये दिया है कि अगर सेम रेशो में ये लाइन डिवाइड कर रही है इन दोनों साइड्स को, तो इसका मतलब है कि ये लाइन पैरेलल है थर्ड साइड के। इसका मतलब ये DE जो है BC के पैरेलल है। ये हमें अब प्रूव करना है, ये दिया नहीं है, ये अब हमें प्रूव करना है कि ये वाली साइड और BC दोनों पैरेलल हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के केस में तो हमें ये पहले से ही पैरेलल दी थी और इस पार्ट को हमने प्रूव किया था। अब यहाँ कन्वर्स में क्या है, ये रेशो पहले से ही इक्वल दिया है और ये प्रूव करना है कि ये लाइन इस साइड के पैरेलल है। तो अब ये रिवर्स चल रहा है,
तो हम ऐसा मान कर चलेंगे कि मान लीजिए ये DE इसके पैरेलल नहीं है. वी राइट द प्रूफ हियर. First of all, what is given? In triangle ABC, a line intersects sides AB and AC at D and E respectively such that AD upon DB is equal to AE upon EC. और अब हमें प्रूव क्या करना है कि DE is parallel to BC. ये हमें अब प्रूव करना है. Getting it? Let us now take the proof here. For this, we assume DE is not parallel to BC. हम मान लेते हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है. Let us draw this DE. हम मान लेते हैं कि DE कुछ इस तरह से है. This is D and this is point E. हम मान रहे हैं कि DE BC के पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो कोई और अदर लाइन होगी जो BC के पैरेलल हो. Let us take it to be DE. मान लीजिए कि अब हमारी जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये पैरेलल है BC के. ठीक है, DE डैश, इसको नाम दे देते हैं E डैश. क्या मान रहे हैं अब हम कि DE BC के पैरेलल नहीं है, तो देन लेट DE डैश बी पैरेलल टू BC. ठीक है, यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं BC के पैरेलल, जिसे नाम दे दिया DE डैश. इफ़ वी टेक इट फर्दर एज दिस वन, यू विल बी बेटर एबल टू सी. नेक्स्ट व्हाट वी सी नाउ, सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC, सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था कि इन साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा. AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C by basic proportionality theorem. इसी को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं BPT. ये समझ में आया कि नहीं स्टेप आपको? क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? हमने मान लिया कि DE जो हमें पैरेलल प्रूव करनी है BC के, इसका रिवर्स मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए पैरेलल नहीं है ये BC के, तो कोई और लाइन होगी जो BC के पैरेलल है, वो ले ली हमने DE डैश. अब क्योंकि DE डैश BC के पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इन पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा. वही लिया है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. बट यहाँ हमें दिया है क्वेश्चन में AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. कहाँ से आया ये तो गिवन है क्वेश्चन में. इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड रिजल्ट. अब आप देखिए LHS तो दोनों में ही इक्वल है, तो अपने आप ही RHS भी इक्वल होंगे. फ्रॉम हियर वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 we can write that AE dash upon E dash C is equal to AE upon EC. ये समझ में आ रहा है? दोनों ही तरफ के LHS इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल हो गए. अब दोनों तरफ हम 1 ऐड कर लेते हैं. लेट अस ऐड 1 टू बोथ साइड्स. AE dash upon E dash C plus 1 equal to AE upon EC plus 1. Now what we get? Take the LCM. I am writing it here. You will get AE dash plus E dash C अपॉन E डैश C. यहाँ पे E डैश C को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये रिजल्ट मिल रहा है. दिस विल बी इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC. नाउ व्हाट इज AE डैश प्लस E डैश C? देखिए आप, AE डैश ये पार्ट और E डैश C दोनों को ऐड करेंगे तो लेंथ मिल गई AC. समझ रहे हैं आप? दिस पार्ट, लेट मी जस्ट चूज, ये और ये, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा? AC ही तो आएगा. So we can see that their sum will be equal to AC. We can write here AC upon E dash C. और अब आप AE प्लस EC देखिए, ये क्या होगा? AE प्लस EC, ये भी तो AC ही होगा. AE प्लस EC, इनका सम भी आप देख रहे हैं AC ही होगा. So we can write here AC upon EC. Next what we see? AC और AC दोनों सेम है, तो अपने आप ही डिनोमिनेटर्स भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं और न्यूमरेटर्स इक्वल हैं.
तो अपने आप ही डिनोमिनेटर्स भी इक्वल होंगे, ई डैश सी विल बी इक्वल टू ई सी एज यू कैन सी। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर ई डैश सी और ई सी दोनों इक्वल हैं, फिगर से कनेक्ट कीजिए, ई डैश सी और ई सी दोनों इक्वल कब होंगे, जब ई और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट हो, अलग अलग पॉइंट ना हो। अगर ये अलग अलग पॉइंट हैं तब तो दोनों लेंथ इक्वल नहीं हो सकती ना। हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि ई डैश सी और ई सी ये दोनों इक्वल हैं, ई डैश सी और ई सी ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब ई और ई डैश दोनों एक ही पॉइंट हो, या कह लीजिए दोनों कोइंसाइड करें, एक के ऊपर एक हो। सो वी कैन नाउ राइट हियर दैट दिस इम्प्लाइज E and E dash must coincide। और जब E और E डैश अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, सेम ही पॉइंट है, तो हमने क्या बात की थी, हमने ड्रॉ किया था कि डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, यही ड्रॉ किया था, डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। तो जब डी ई डैश बी सी के पैरेलल है तो अपने आप ही डी ई भी तो बी सी के पैरेलल होगी। फिगर से कनेक्ट कीजिए आप, यहाँ पर डी ई डैश ये बी सी के पैरेलल है और ई और ई डैश तो सेम ही पॉइंट है, तो अपने आप ही ये लाइन भी तो बी सी के पैरेलल भी तो हुई, तभी तो ये रेशियोज इक्वल आ रहे हैं अब हमारे पास। सो व्हाट वी सी हियर, वी कैन राइट दिस implies that DE is parallel to BC and this is what we were supposed to prove। एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं, देखते हैं क्या किया हमने। हमारे पास क्वेश्चन में ये एक ट्रायंगल दिया था और ये दिया था कि एक लाइन ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट्स पर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि ये रेशो हमें इक्वल मिल रहा है। हमें प्रूव करना था कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, नाउ वी अज्यूम दैट डी ई इज़ नॉट पैरेलल टू बी सी। हम उल्टा मानकर चलते हैं कि पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो जब डी ई पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन है जो इसको पैरेलल ले ली, हमने ले लिया डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। अब इसको पैरेलल लेने से बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ये पार्ट्स रेशो में मिल गए, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो अब क्योंकि एल एच एस इक्वल हैं दोनों रेशियोज के, तो आर एच एस भी इक्वल होंगे। देखिए दोनों तरफ 1 ऐड कीजिए, यू विल गेट इट एज ए सी अपॉन ई डैश सी, ए सी अपॉन ई सी। इसका मतलब ई डैश सी और ई सी इक्वल हैं। अब दो डिस्टेंसेस ई डैश सी और ई सी इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों पॉइंट्स एक ही हों, इफ़ पॉइंट्स ई एंड ई डैश कोइंसाइड। और ये कोइंसाइड करेंगे तो क्योंकि डी ई डैश बी सी के पैरेलल थी, तो इसका मतलब डी ई भी बी सी के पैरेलल है, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस वॉज द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेट अस नाउ सी व्हाट बोथ दीज थ्योरम्स मीन। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के केस में हमें डी ई और बी सी पैरेलल दिए हुए हैं और हमें रिजल्ट मिलता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये दिया रहता है पैरेलल और हम इस रिजल्ट तक पहुंचते हैं, जबकि इसके कन्वर्स में हमें ये रिजल्ट दिया है और हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। इससे रिजल्ट ये निकल कर आया है, इसमें इससे रिजल्ट ये निकला है, ये दिया है और इससे ये रिजल्ट निकला। कन्वर्स में ये रिजल्ट दिया है, रेशियोज इक्वल दिए हैं और इससे ये साइड्स पैरेलल मिल रही हैं। गेटिंग इट? नाउ वी विल बी यूजिंग दीज थ्योरम्स टू डू सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर बुक। हियर वी हैव एग्जाम्पल 1. If a line intersects sides AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon AB is equal to AE upon AC. ये फिगर आप देख रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, हमें प्रूव ये करना है कि AD अपॉन AB, अब हमें पूरी लेंथ लेनी है, ये पूरी AB, और ऐसे ही AE अपॉन पूरी लेंथ AC। देखिए यहाँ पर AB और AC लेना है और हमें पता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब क्योंकि यहाँ रेशियोज़ की बात हो रही है तो ज़रूर बीपीटी यहाँ पर कहीं ना कहीं अप्लाई होगी, और क्यों ना होगी। देखिए यहाँ पर दिया है कि इट इज़ पैरेलल टू बीसी, ये जो डीई है लाइन विच इंटरसेक्ट्स एट डी एंड ई, इट इज़ पैरेलल टू बीसी, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट व्हाट इज गिवन। गिवन in triangle ABC DE is parallel to BC, ये हमें दिया है।
एंड वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये प्रूव करना है. नाउ वी राइट द प्रूफ हियर. सिंस DE is parallel to BC in triangle ABC, we have AD upon DB equal to AE upon EC by बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. शॉर्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं. तो आप ये देख रहे हैं क्योंकि ये साइड पैरेलल है इसके, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हम कर सकते हैं. अब यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं एक बार. AD अपॉन DB, वी टेक द रेसिप्रोकल. लेट मी मेक सम स्पेस हियर. इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE. ठीक है. नाउ वी ऐड 1 टू बोथ द साइड्स. दिस इम्प्लाइज DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1. जब हमने 1 ऐड कर दिया दोनों साइड्स, तो अब ये क्या मिल गया, इधर से AD मल्टीप्लाई हो जाएगा. वी विल गेट इट एज DB प्लस AD अपॉन AD इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE. देखिए क्या किया हमने, AD को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर हो गया DB प्लस AD और नीचे आपका आ गया AD. यहाँ से AE को 1 से मल्टीप्लाई किया, EC प्लस AE अपॉन AE. नाउ व्हाट इज DB प्लस AD? यू विल सी इट इज इक्वल टू AB. DB प्लस AD, ये पूरा AB बन गई लेंथ. तो और इसी तरह से यहाँ पर AE और EC का सम क्या हो गया, AC. सो हियर वी विल राइट DB प्लस AD एज AB एंड CE प्लस AE, इन दोनों का सम आगा AC. वी मेक सम स्पेस हियर. दिस इज AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE. अब हमें जो रिजल्ट प्रूव करना था उसमें बस वो लाने के लिए रेसिप्रोकल लेना होगा. वी टेक द रेसिप्रोकल और AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. Hence proved. This we were supposed to prove. ठीक है. Here what we did, we applied the basic proportionality theorem, AD upon DB equal to AE upon EC. फिर हमने रेसिप्रोकल लिया और फिर 1 ऐड करते हुए, सिंप्लीफाई करते हुए हमें ये रिजल्ट मिल गया. गेटिंग इट. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऊपर है वो तो एक पार्ट है और नीचे ये पूरी लेंथ है. एक पार्ट है ऊपर AE और नीचे ये पूरी लेंथ है. दिस विल बी यूज्ड इन क्वेश्चंस फर्दर ऑल्सो. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2. ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC. देखिए ये एक ट्रेपेजियम है और ये AB और DC दोनों पैरेलल हैं. E एंड F आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC. देखिए E और F नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये इन पर 2 पॉइंट्स हैं. सच दैट EF इज पैरेलल टू AB. अब ये EF जो है AB के पैरेलल भी है. शो दैट AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. यहाँ पर क्वेश्चन से रिलेट कीजिए AE और ED, AE ED BF FC. तो इनका रेशो लेना है, AE और ED का, BF और FC का. तो अब रेशो की बात आ रही है तो यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई होती दिख रही है, पर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई होती है ट्रायंगल्स में और यहाँ तो कोई ट्रायंगल नहीं है. सो फर्स्ट वी नीड टू ब्रिंग सम ट्रायंगल्स. और वो कैसे मिलेंगे, हम अगर ये डायगोनल जॉइन कर दें AC. तो अब आप देखिए 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं. दिस वन ADC और एक ये ABC. 2 ट्रायंगल्स हो गए. यू कैन सी एक तो ये ट्रायंगल हो रहा है और एक ये ट्रायंगल हो रहा है. तो 2 ट्रायंगल्स हो गए जिनमें हम इजीली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अब अप्लाई कर सकते हैं. ऑल्सो वी गिव इट द नेम एज G. इसको नाम दे देते हैं G. Getting it? We write here first what is given. In trapezium ABCD हमें दिया है AB
parallel to CD and EF parallel to AB. ठीक है, ये दोनों साइड्स पैरेलल दी हैं और ये दोनों पैरेलल दी हैं. अब हमें प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेते हैं. वी हैव टू प्रूव AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC. ये प्रूव करना है. इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? वी विल जॉइन AC, A एंड C. इनको ज्वाइन कर लिया, A और C को ज्वाइन कर लिया. इससे हमें दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं. नेक्स्ट व्हाट? Look at this triangle ADC. Here we are writing the proof after writing all this. In triangle, first of all, we need to mention here. ये दोनों sides आपस में parallel हैं और ये first and third parallel हैं, तो अपने आप ही EF और DC भी parallel होंगे. Here, AB is parallel to CD and AB is parallel to EF. This implies that EF is parallel to CD. ये दोनों sides parallel हो गई, ये और ये. Now in triangle ADC, ये बड़ा triangle ADC, EG is parallel to DC. ठीक है, अब ये EG parallel हो गई DC से, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ अप्लाई कीजिए. AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC. AG अपॉन GC. हमने यहाँ पर ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई कर दी. AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC. गेटिंग इट? नाउ व्हाट वी सी, वी विल अप्लाई दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन दिस ट्राइंगल ऑल्सो, दिस स्मॉलर वन. राइट हियर बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं. नेक्स्ट वी टेक सम स्पेस हियर. इन ट्राइंगल दिस इज ABC, GF is parallel to AB. Therefore, here now which vertex we need to take first? देखिए ये opposite या पैरेलल साइड्स हैं. देखिए ये वाली, ये और ये. लेट मी चेंज द कलर. ये पैरेलल साइड्स ये हैं इस केस में, तो इनके सामने जो ऑपोजिट वर्टेक्स है C, यहाँ से हम शुरू करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का रेशियो लेना शुरू करेंगे. CF FB और यहाँ से CG और AG. ठीक है, CG अपॉन AG इज इक्वल टू CF अपॉन FB या कह लीजिए BF. गेटिंग इट? अगेन बाय BPT. अब इसका आप देखिए यहाँ पर जो दोनों हमने रेशो लिए उनमें दिस इज AG अपॉन GC और यहाँ पर AG डिनोमिनेटर में है, GC ऊपर है, तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं क्योंकि हमें यही फॉर्म चाहिए AG अपॉन GC. तो यहाँ भी AG अपॉन GC लेने के लिए रेसिप्रोकल ले लेते हैं. AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC बाय टेकिंग रेसिप्रोकल. अब आप दोनों ही रेशियोज पर फोकस कीजिए. दिस भी 2. आप इसमें देखेंगे RHS इसमें AG अपॉन GC है और इसमें ये AG अपॉन GC LHS है. ये पार्ट्स दोनों ही रेशियोज में इक्वल हैं, तो अपने आप ही ये रिमेनिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे. सो फ्रॉम 1 and 2 what we get? We get AE upon ED equal to, from here we get BF upon FC. और यही तो हमें प्रूव करना था. We can now write hence proved. देखिए हमने क्या किया, समराइज करते हैं. ये फिगर है, इस केस में हमने डायगोनल ड्रॉ किया और फिर इस बड़े ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमने AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन CG लिया. फिर BPT से ही छोटे ट्राइंगल में CG अपॉन AG इक्वल टू CF अपॉन BF रेसिप्रोकल लिया. तो अब क्योंकि ये सेंटर पार्ट्स दोनों में इक्वल हैं, तो अपने आप ही ये रिमेनिंग पार्ट्स AE ED और यहाँ से BF FC इनके रेशियो इक्वल मिल गए जो हमें प्रूव करना था. गेटिंग इट? वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. Example 3. In figure you will see PS
अपॉन एस क्यू, देखिए पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, एंड एंगल पी एस टी, दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर क्यू। ये दो एंगल्स इक्वल हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, और दो साइड्स इक्वल होने के लिए हम अगर उस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें तो इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स अपने आप इक्वल होती हैं, हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल जाएगा। सो वी नीड टू प्रूव एक्चुअली दिस एंड दिस एंगल टू बी इक्वल। अगर ये दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए तो अपने आप ही इनकी अपोजिट साइड्स पी क्यू और पी आर ये इक्वल हो जाएंगी और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने के लिए हमें कुछ तो सोचना होगा कि क्या करें। देखिए क्या दिया है हमें, ये रेशो इक्वल दिया है। अब जैसे ही ये रेशो इक्वल है तो बीपीटी के कन्वर्स थ्योरम से ये साइड पैरेलल हो जाएगी इस साइड के, एस टी विल बी पैरेलल टू क्यू आर। पैरेलल होते ही यहाँ पर आप देखेंगे ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीज आर पैरेलल, दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। और ये एंगल तो ऑलरेडी इस एंगल के इक्वल है, तो अपने आप ही ये और ये एंगल इक्वल आ जाएंगे और तब हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी पी क्यू क्यू आर, और ये ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इसी को हम प्रेजेंट करते हैं आंसर को। वी राइट हियर गिवन in figure, or we can say in triangle PQR, PS upon SQ equal to PT upon TR and angle PST, this is equal to angle PRQ, ये हमें दिया है। Now to prove, what we have to prove? Triangle PQR is isosceles, ये हमें प्रूव करना है। Now we begin the proof here. How to prove? देखिए, since we can apply here now the converse of PPT, since PS upon SQ is equal to PT upon TR, then we have this one ST parallel to QR। यहाँ आप लिख सकते हैं by converse of basic proportionality theorem। उसमें यही तो था कि अगर रेशियोज इक्वल हैं तो ये साइड्स पैरेलल होंगी, वही किया है, रेशियो इक्वल दी है तो साइड्स पैरेलल कर दी, ST और QR ये पैरेलल हो गई। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से this implies angle PST is equal to angle PQR, इस एंगल की PQR। Why? These are corresponding angles। पैरेलल लाइंस के केस में ये corresponding angles हो गए, हमने पढ़े हुए हैं alternate interior angles, co-interior angles और corresponding angles in case of parallel lines when they are cut by a transversal। तो वही केस है, corresponding angles हैं, ये इक्वल हो गए। But angle PST is equal to angle PQR, this is given, ये तो दिया है और ये हमें corresponding angle से मिल रहा है। इनको नंबर दे दीजिए, let this be 1, this be 1 and this be the second result। From 1 and 2 we get which two angles equal? Angle P, this one is PRQ, let me correct it, this one is PRQ, angle PRQ इसके इक्वल दिया है, देखिए PRQ इस एंगल के। Now from 1 and 2 we get angle PRQ equal to angle PQR, ये दोनों एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे। आप देखिए LHS पार्ट्स इक्वल हैं तो अपने आप ही ये RHS पार्ट्स भी इक्वल हो गए, PQR और PRQ ये इक्वल हो गए। अब जैसे ही ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। एंगल Q के ऑपोजिट है PR और एंगल R के ऑपोजिट है PQ, तो ये साइड्स इक्वल हो गई और हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज PQ is equal to PR। गिव द रीज़न।
sides opposite the equal angles are equal। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, और साइड्स इक्वल होने का मतलब ट्रायंगल PQR इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जो हमें प्रूव करना था। दिस वी वर सपोज्ड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड वी कैन राइट। गेटिंग इट? एक बार फिर से आप देख लीजिए क्या किया हमने। हमें यहाँ पर ये रेशो इक्वल दिया हुआ था, ये रेशो इक्वल होने से बीपीटी के कन्वर्स से ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गई, ये पैरेलल होने से दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये तो पहले ही इक्वल दिए थे, और ये इक्वल हमने प्रूव कर दिए, तो अपने आप ही ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। इनके इक्वल होने से ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और तब ये दोनों साइड्स इक्वल होने से ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, जो हमें प्रूव करना था। गेटिंग इट? So these were the two important theorems and some examples based on them. I hope you have understood them very well, and in our next class we will be applying them in exercise 6.2. Okay then, goodbye.